Okay, guys, so this is our paragraph number 6. Today we are going to start from paragraph number 6. In yesterday lecture, we studied 5 paragraphs. Okay, so मैं एक स्टूडेंट से रीडिंग करवाऊंगा. Yes, Abdul Muiz Khan, start from paragraph number 2. This one. नजर आ रही है? Hello. Hello, guys. अब्दुल्ला बिन यस सर, ये स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? आ रही है सर। तो स्टार्ट करें. अब्दुल मुईज खान, स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ नंबर 6. दिस वन. ओके, साथ उर्दू भी पढ़नी है. यस यस. The interior of the mosque at the lower level is lined with more than 20,000 handmade ceramic tiles in more than 50 different tulip designs. मस्जिद का अंदरूनी नीचे वाला हिस्सा हाथ से बनी हुई 20,000 से जायद टाइल्स, 50 से ज़्यादा पत्तियों की तरफ के नमूना जात पर मुश्तमिल है. यस. Add तो gallery level. इसमें है सेरेमिक का मतलब क्या है? सेरेमिक, सेरेमिक टाइल्स, पत्तियों की तरह. मट्टी से बनी हुई टाइल्स. मेड फ्रॉम क्ले. सेरेमिक होता है वही टाइल्स जो मट्टी से बने होते हैं. ठीक है, सेरेमिक टाइल्स मट्टी से बनी हुई यानी मेड फ्रॉम क्ले. ओके, मोर देन 50,000 डिफरेंट टुलिप. टुलिप का मतलब है एक किस्म की अ फ्लावर दैट लुक्स लाइक अ बिल्डिंग रोज. ओके, दैट इज कॉल्ड टुलिप. यस. सो इसका मतलब ये है कि the floor and the inner levels wall of the masjid are lined with handmade ceramic tiles. और फिर ये कहते हैं कि these tiles are more than 20,000 in number. देखें ना, 20,000 in number. और फिर 50,000, 50 different tulip design mean that they are made in more than 50 tulip designs. Yes. Next line. Now, this is all about the interior structure of the masjid. Which masjid? This Sultan Ahmad Masjid. Okay. Yes, Abdul Muiz. Next line. आपको मेरी आवाज आ रही है अब्दुल्ला बिन फैसल? यस सर, आ रही है आवाज. तो फिर आप नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट करें. अब्दुल मुइज तो कहीं गायब हो गया. ओके सर. सर ये at gallery level the design become flamboyant with representation of flowers, fruits and cypress stores. साइप्रेस. यस. फ्लेम्बियंट का Cypresses. फ्लेम्बियंट का मतलब है रोशन. ओके, ये फ्लेम्बियंट का जो वर्ड है ये ज्यादातर उसमें आता है सेंटेंस स्पेलिंग में, तो आप लोग इसकी भी प्रैक्टिस कर ले. ओके, कहते हैं कि एट गैलरी लेवल द डिजाइन बिकम्स फ्लेम्बियंट with representation of flowers, fruit and cypresses. Okay, so cypress is a kind of plant. It's a kind of plant. तो कहता है कि that the and the galleries of the masjid, yani the gallery of the Sultan Ahmad Masjid, the design become very colorful, shining. Why? Here the tiles show the design of flower, fruits and cypresses. तो कहते हैं कि गैलरी के सतह तक ये डिजाइन फलों और लंबे सब्ज दरख्तों को जाहिर करते हुए शलोनुमा बन जाते हैं, रोशन हो जाते हैं. सो फ्लेम्बियंट मीन रोशन होना. The gallery level of the design becomes flamboyant. Becomes flamboyant mean रोशन हो जाते हैं. Okay. So this was paragraph number 6. Okay. Representation mean show, display. Yes. The upper level of the interior is adorned with blue paint. More than 200 stained glass windows with intricate design allow natural light to brighten up its interior, and the chandeliers further illuminated it with their glow.
The decorations include verses from the Holy Quran. The floors are covered with carpets. The floor, yes. So कहता है कि the upper level of the interiors is adorned. Adorned का मतलब है decorated. Okay, decorated. सजाना. Okay, adorned का मतलब है सजाना यानी decorate with blue paint. तो कहता है कि अंदरूनी हिस्सा जो है, अंदरूनी हिस्से के ऊपर का मुकाम यानी नीचे, this one, yes, को नीले रंग की रोगन के साथ खूबसूरत बनाया गया था. अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज एडोर्न्ड विद ब्लू पेंट, यानी ब्लू पेंट से सजाया गया है. पैसिव सेंटेंस है, इज एडोर्न्ड विद ब्लू पेंट. More than 200 stained glasses windows with intricate design allow natural light to brighten up it. Yes. So stain का मतलब है रंगदार. Glass mean शीशे, windows with intricate. Intricate का मतलब है complex, complex पेचीदा, complicated. Okay. और next intricate mean complex. Stain का मतलब है रंगदार. Okay, to brighten up its interior with, yes, interior and the chandeliers further illuminated it with their glow. Yes. So इसका उर्दू है कि पेचीदा डिजाइन से बनी हुई 200 से ज्यादा शीशे की खिड़कियां और अंदरूनी शीशे के हिस्से को अंदर से गुजरने वाली रोशनी की वजह से और ज्यादा चमकदार बना देती है. Yes. The decoration include verses from the Holy Quran. Yes. ठीक है सर. द डेकोरेशन इंक्लूड वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान. कहते हैं कि कुरानी आयत से इसको सजाया गया है. ओके. द फ्लोर और कवर्ड विद कारपेट्स, और जो फर्श है वो उस पर कालीन बिछाए गए हैं. सो इट्स ऑल अबाउट द इंटीरियर स्ट्रक्चर, द इंटीरियर डिजाइन ऑफ द सुल्तान अहमद मस्जिद. नाउ पैराग्राफ नंबर 8. यस, आप रीड कर ले असदुल्ला मुख्तार. असदुल्ला, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, start That reading. the most important element in the interior of the mosque is the mihrab, which is made of finely इधर गया है, which is made of finely curved marble. Uh, एक मिनट. मार्बल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन to द the right of इंटीरियर ऑफ. mihrab is Okay, a stop richly here, stop here, decorated. stop here. Just one sentence. The most important element in the interior of the mosque, कहते हैं कि mosque के अंदरूनी हिस्से में जो सबसे important part है, that is the मेहराब. ठीक है. Element mean part. Finely, delicately, superbly, हम कहते excellently. ओके. सो कहते हैं कि मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का सबसे अहम अंसर यानी अहम हिस्सा इसकी मेहराब है. मेहराब तो जानते हैं ना, जब जहाँ मौलवी साहब खड़े होते हैं और जमात देते, दैट इज कॉल्ड मेहराब. सो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सुल्तान अहमद मस्जिद, व्हिच इज मेड ऑफ फाइनली कर्व्ड मार्बल. जो कर्ड का मतलब है शेप्ड, जिस वो वही मार्बल जिस पे डेकोरेशन की यानी नक्श निगार, दैट इज कॉल्ड कर्व्ड मार्बल. तो कहते हैं कि ये जो मेहराब है किस चीज से बनी हुई है? इधर से मार्बल से. ओके, मार्बल से, डेकोरेटेड मार्बल से बने हुए हैं. ठीक है. यानी मेहराब के दाई तरफ खूबसूरती से सजाया गया मिंबर है जो, अच्छा ये वाला है. टू द राइट, ये स्टार्ट फ्रॉम हियर. टू द राइट ऑफ द मेहराब. To the right of mihrab is a richly decorated pulpit. Is a richly The mosque decorated pulpit. Yes. The mosque is so designed that पुलपिट कहते हैं मेंबर को. मेंबर जानते हैं ना, जहाँ जुमे के दिनों मौलवी साहब बैठ के खुतबा देते, दैट इज कॉल्ड पुलपिट. यस. the mosque is so designed that even when it is most crowded, everyone in the mosque can hear and see the imam. Yes.
कहते हैं कि मस्जिद को इस तरह डिज़ाइन किया गया है, यानी मस्जिद के स्ट्रक्चर इस तरह है कि जब ये मुकम्मल तौर पर लोगों से भरी होती है तो हर कोई इमाम साहब को सुन और दे सकते हैं, यानी दैट इवन व्हेन इट इज मोस्ट क्राउडेड, हत्ता कि अगर इसमें ज़्यादा रश भी हो, क्राउड मीन रश, ज़्यादा लोग हो, एवरीवन इन द मास्क कैन हियर एंड सी द इमाम, हर कोई इमाम को देख सकता है और सुन सकता है, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर इस तरह बनाई गई है। यस, पैराग्राफ नंबर 9। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट दैट इज यस राही, आप स्टार्ट करें। The most important element in the No, interior no, of the paragraph mosque number in the 9. This is paragraph is- number 9. सर ऊपर करें थोड़ा सा, इसमें थोड़ा ब्लर नजर आ रहा है अभी, तो आप थोड़ा बुक ऊपर कर दें, बस सही है सर। The royal room is situated in the The royal room is situated in the southeast corner. शाही कमरा मस्जिद के शुमाल मशरिकी कोने में वाक़या है। It has its own pulpit that used to be decorated with jade and roses. इसका एक अपना मिंबर है जिसको पत्थरों और गुलाब के फूलों से मुज़य्यन किया गया है। यस यस, सो जेड का मतलब है काइंड ऑफ एक सब्ज कीमती स्टोन होता है, दैट इज कॉल्ड, जिसमें ज़्यादातर अंगूठ वहाँ से जो रिंग होते हैं ये उसमें भी लगते हैं। तो इसका मतलब ये है कि रॉयल रॉयल रूम का मतलब है यानी द रूम that is only for king, yani the room for the king is located in the southeast corner of the masjid। और इसके अलावा कि a separate, यानी what does it mean that it has its own pulpit, यानी जो रूम बादशाह के लिए यानी शाही कमरा जो जनूब मशरिक कोने में वाक़ है इसका अपना मिंबर है, इसका अपना पुलपिट है, यानी a separate pulpit was built there, उसी शाही कमरे में एक separate पुलपिट तामीर किया गया। ओके, देन कहते हैं कि दैट इज यूज्ड टू बी डेकोरेटेड विद जेड एंड रोजेस, और ये जो पुलपिट है, द पुलपिट दैट इज built in the room of king, so for the presence of the king it was then adorned, यानी it was then decorated, ये सजाया गया है। ओके, so with green beautiful jade and roses आप कह सकते हैं। ये जो शाही मस्जिद सॉरी शाही कमरा है जो किंग के लिए बनाया गया उसका अपना एक पुलपिट है और उसको मुख्तलिफ किस्म की डेकोरेशन से सजाया गया है, यानी जेड इज अ काइंड ऑफ we can say kind of stone, green stone often used to make, ज़्यादातर जेवरात में भी यूज होती है। ओके, that is called jade। yes, so it was about the रूम ऑफ द किंग। रॉयल का मतलब है रॉयल फैमिली, आप लोगों ने नाम सुना होगा रॉयल फैमिली, रॉयल का मतलब है किंग। ओके, द रूलर। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। यस, नवीद अहमद। नवीद, आर यू देयर? ये कल जो भी ये कौन देखे ना, यू पीपल आर मेच्योर, यू आर स्टडिंग इन 9th क्लास और आप कितने डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, कोई भी बच्चा है तो इसको पता नहीं, इबाद नाम का बच्चा था अभी मुझे बच्चा आया था, इबाद नाम का था। ये इबाद अभी मुझे ये मैंने इसलिए एंटर किया कि मैंने देख लिया इबाद नाम के लड़का, बट अभी एक मिनट, सर एंट्री नहीं होने बगैर नाम क्लास के बच्चों। ये कहाँ से होता है? सर आप उस बच्चे के नाम पे क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पे रहेगा रिमूव कर दें, वो निकल के वैसे हो। नहीं सर, वो ओके, आप मुझे एंटर नहीं करते, जस्ट अ तो मिनट, मैं जस्ट अ दूसरी बाइक मिनट। से आया था, वो मैं ही था, बाद में था।
फिर आने लग गया फिर कीड़े। ओके स्टूडेंट्स, बस क्या करें, ये बाद नेम के हमारे पास रईस इज देयर, सो अभी ये नहीं कर सकते। ओके सो कैरी ऑन नवीद। ओके बेटा बी क्वाइट। नवीद आर यू देयर? एक का नंबर एक दूसरे के पास, दूसरे का नंबर दूसरे के पास। पहले हमसे का जान दूसरा नंबर का नाम डेफिनेशन करवा। जिसको मैं बोलूँ वो कहाँ से आएगा? नहीं, मैं किसी एक पल एक सेकंड। Hello Naveed, are you here? Naveed? जी Okay. सर। नवीद आप स्टार्ट करें ना पैराग्राफ नंबर 10। The blue mosque has six minarets. Four minarets stand on each of the four corners of the mosque. Each of these pencil-shaped minarets has three balconies, while the two other at the end of the forecourt have only two balconies. ये कहता है कि जनाब द ब्लू मस्जिद है 6 मिनारेट्स, यानी मिनारेट्स का मतलब है गुंबद जो मीनार होते हैं। कहते हैं कि नीली मस्जिद के कितने मीनार है? 6, यानी 6 मीनार्स हैव बीन बिल्ट एट वेरियस कॉर्नर ऑफ द ब्लू मस्जिद। मुख्तलिफ कोने पे डिफरेंट ओनली, यानी 4 मीनारेट्स स्टैंड ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ द मॉस्क, यानी सुल्तान अहमद मस्जिद जो है इसके 6 मीनार है। और ये जो 4 मीनार हमारे पास है ये मस्जिद के हर कोने पर बनाए गए हैं। इट मीन दैट 6 minarets have been built at various corner of the blue masjid. So we can say that 4 minarets, 4 minar are situated at the 4 corner of the masjid. जिस तरह फैसल मस्जिद आप चले जाए तो जितने भी 4 corner है उसमें एक minarets was built there. Okay. और इसके अलावा जो बाकी 2 minarets are, each of these pencil shaped minarets has 3 balconies. बाकी जो 2 हमारे पास रहती है, यानी 2 at the front end of the forecourt. So कहता है कि each minarets of the forecourt has 2 balconies, और हर एक के 3 बालाखाने हैं। बालाखाने मीन balconies. Okay. While the 2 other at the end of the forecourt only have only 2 balconies. समझ आ गई? जबकि दूसरे 2 मीनार सैन के इख्तिताम पर तामीर किए गए हैं, इनके सिर्फ 2 बालाखाने हैं। तो आप लोग इस ट्रांसलेशन को याद कर लें। बालकनी का मतलब है स्ट्रक्चर दैट इज अटैच्ड टू द आउटसाइड वॉल ऑफ बिल्डिंग। सो फॉरकोर्ट का मतलब है बैरूनी सहन, जो बैरूनी सहन होता है, दैट इज कॉल्ड फॉरकोर्ट। सो आई होप इट वुड बी क्लियर टू यू। नाउ पैराग्राफ नंबर 11, I think this is the last paragraph. So here I would like to invite Saifullah Qureshi. Saifullah, are you there? Yes sir. चलो बेटा आप लास्ट पैराग्राफ रीड कर ले, एक सेंटेंस आराम से। In the evening, a large number of tourists and Turks gather in the park facing the mosque to hear the call to the evening prayers. क्योंकि अभी ये जो मस्जिद है इट इज लोकेटेड इन इस्तांबुल, सो टर्क्स जो है यानी पीपल ऑफ बिलोंग टू तुर्की, दे गैदर इन द पार्क फेसिंग द। ओके, यस ट्रांसलेशन करें इसकी। शाम के वक्त बहुत से सयाह तुर्की के लोगों की एक बड़ी तादाद मस्जिद के पास पार्क में जमा होकर शाम की अजान सुनते हैं। यस,
Next line, yes. The mosque is flooded with lights, and so are the heart of believers with divine love. Yes. मस्जिद को खूबसूरत रोशनियों से सजाया गया है, जैसे अल्लाह ताला इलाही मोहब्बत या अल्लाह ताला अल्लाह से मोहब्बत मोहब्बत के सब मोमिन के दिलों में है। यस, है। ये हमारा बिलीव भी है। और खुद आप लोग देख ले, जब आप लोग शाम के टाइम मस्जिद चले जाएं, तो जब आप नमाज पढ़ते स्पेशली शाम की, तो इंसान के मुस्लिम का एक किस्म की मोहब्बत बढ़ जाती है। यस, दिलों में। यस, नेक्स्ट लाइन। There must have been lost a blue mosque over the year, yet it has not lost the love of its visitors. अगरचे गुज़श्ता सालों में नीली मस्जिद बहुत कुछ खो चुकी है, लेकिन अभी तक अपने सियाहों की मोहब्बत नहीं खो सकी। यस, लास्ट लाइन, हरी अप। The mosque is still one of the most frequently visited monument of the world. मस्जिद दुनिया के अक्सर यादगारों में से सबसे ज्यादा सैर की जाने वाली है। Okay, good. Thank you so much. Okay, students, so it was enough for today. Inshallah, in tomorrow lecture, we will cover the exercise of this chapter, this unit number 7. We will cover all those grammatical concepts which are included in exercise. तो कल हम इसकी exercise कर लेंगे। So it was enough for today. अभी class की time खत्म हो गई। Okay, see you tomorrow. Thank you so much. Allah Hafiz.